ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग का अभी जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है विच इज ऑल अबाउट द फंक्शंस एंड मेथड्स इन सी। सो वो ऑलमोस्ट हो गया है। देयर इज ओनली वन टॉपिक लेफ्ट जो लास्ट लेक्चर में हो जाना चाहिए था, बट ठीक है, ये लेक्चर में हम लोग उसे देखने वाले। दैट इज द रिकर्जन ऑफ फंक्शन। ओके, रिकर्सिव फंक्शन, द रिकर्सिव फंक्शन इन सी। सी हियर द रिकर्सिव फंक्शंस। ओके, जो लास्ट टॉपिक बचा है चैप्टर 5 में। सो वही देखते क्या है रिकर्जन। ओके, सी रिकर्जन। So recursion is nothing about the function call itself is known as recursion. Okay, in the simple language, uh, I am repeating the sentence one more time. The function call itself is nothing about the recursion. Function call itself मतलब function खुद को ही call कर रहा है at a several time until and unless the condition is satisfied. So the recursion is the process of calling the function itself in C programming to produce the same input values, to produce the same kind of input structure again and again, obviously until the condition is satisfied. So it is the process of, जैसे कि मैंने बोला, it is the process of repeating items in a self similar way in a programming language. If program allows you to call a function inside the same function, एक ही फंक्शन में बार बार उसी फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक इनफाइनाइट लूप जनरेट कर रहा हूँ, देन इट इज कॉल्ड एज अ रिकर्सिव कॉल ऑफ द फंक्शन. So see here, this is not a syntax, this is the kind of structure of recursion. जैसे कि void और एक मैंने recursion नाम का फंक्शन बनाया. Now the point to be remember here is there is no need to write the recursion the same name as it is. Okay, you will use the name whichever you want. आप लोग आपका खुद का नाम यूज कर सकते हो. You can write the addition, subtraction, repetition, any of the name, ठीक है. But to demonstrate the use of recursion, they use here recursion name. Okay, so see here, I am creating one function named as recursion, and inside the function body I am calling the same function. मतलब क्या, एक infinite loop generate हो रहा है, the loop which has no end. Okay, ये वैसे ही घूमने वाला है क्योंकि ये फंक्शन के अंदर मैं वही फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ. ओके, और मेन फंक्शन में देखो, मेन फंक्शन में मैंने, क्योंकि ये जो ऊपर मैंने कोड लिखा है तो कोड इज मीनिंगलेस until and unless I am mentioning the function name या फिर I am calling the function name inside the main body. ठीक है, सो मेन फंक्शन में भी मैं उसी को कॉल कर रहा हूँ. सो एक ही चीज में बार बार रिपीट कर रहा हूँ या फिर एक ही फंक्शन को मैं पूरे प्रोग्राम में घुमा रहा हूँ. दैट इज ऑल अबाउट द रिकर्जन. And recursive functions are very useful to solve many mathematical problems. So these recursive functions are very helpful while we are dealing with the mathematical problems, such as calculating the factorial of a number or generating Fibonacci series. So इन लोग ने दो एग्जाम्पल दिए हैं, दोनों एग्जाम्पल सांगितले. फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर टू फाइंड अ फैक्टोरियल. अब ये कैसे फाइंड करना है आप लोग ने स्कूल में पढ़ा होगा आई गेस. सो वही चीज हम लोग विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्राम जनरेट करने वाले. एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज generating Fibonacci series. So if you want to generate one factorial of a number या फिर Fibonacci series, then you can use this recursion method, recursion function. Okay, so पहला प्रोग्राम है factorial of a number, बहुत ही easy प्रोग्राम है, but you have to concentrate. So see here, अभी फैक्टोरियल मतलब क्या होता है मालूम है ना. जैसे कि सपोज आई वांट टू, 2 मिनट में नोटपैड स्टार्ट करता हूँ, देन यू विल गेट द क्लियर आइडिया. ओके, सो फैक्टोरियल, हाँ, सो 1 का फैक्टोरियल ये कॉमन 1 ही रहता है, ठीक है. 1 का फैक्टोरियल 1 into 1 1 ही रहता है. ओके, नाउ सपोज आई वांट टू फाइंड द 2 फैक्टोरियल. सो वो ऐसे लिखते हैं 2 एंड द फैक्टोरियल सिंबल. हाँ, जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो फैक्टोरियल सिंबल हम लोग यूज करते हैं. सो 2 का फैक्टोरियल क्या रहता है, 2 into फैक्टोरियल ऑफ 1, 2 into फैक्टोरियल ऑफ 1. ओके, सो फैक्टोरियल ऑफ 1 कितना है, 1. सो 2 into 1 2. Okay, then the 3 is equal to 3 into factorial of 2, 3 into factorial of 2, factorial of 2. So 3 into 2 is 6. Clear? So similarly 4 के लिए हम लोग क्या करने वाले, मतलब ये इन शॉर्ट कैसे हो रहा है, 4 है तो 4 into 3 into 2 into 1. ओके, ऐसे मैं कर रहा हूँ. So 4 3s are
12 इंटू 2 24, सो वो इसका 24 आने वाला है। क्लियर? सो ऐसे हम लोग फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो यही लॉजिक हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस रिकर्जन फंक्शन एंड सी प्रोग्राम हम लोग बिल्ड करने वाले। सो सी हियर इज माई आई एम राइटिंग वन हेडर फाइल जो मैं कॉमनली करता हूँ, और यहाँ पे एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाया है। दैट फंक्शन इज माई रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। तो ये पार्ट को स्किप करते हैं। स्किप मतलब ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला था कि whenever you compile the program, the compiler first check the main function, ठीक है। तो वो मेन फंक्शन में आएगा। ओके, मेन फंक्शन में क्या है, int I is equals to 12, एक वेरिएबल बना है I नाम का, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर एंड द वैल्यू ऑफ द डेटा टाइप इज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज 12। ओके, देन आफ्टर दैट आई एम प्रिंटिंग वन लाइन फैक्टोरियल ऑफ %d। %d की वैल्यू क्या है, I, हाँ, जो मैंने यहाँ पे कॉल किया I 12। सो फैक्टोरियल ऑफ 12 इज %d। पहली वैल्यू क्या मैंने कॉल की है I, और दूसरी वैल्यू कॉल की है मैंने फैक्टोरियल ऑफ I। ओके, सो नाउ फैक्टोरियल ऑफ I is my function. So my program finds this function inside the main body. Okay, है क्या यहाँ पे, नहीं है, so it will jump on the outside of the main body and it will find the same function. So यहाँ पे इसको मिल गया फैक्टोरियल नाम का फंक्शन, ठीक है। और I की वैल्यू ये अनसाइंड इंट I को लग गई। अनसाइंड मतलब जो साइन नहीं है, मतलब प्लस माइनस कुछ साइन नहीं है। ओके, ऐसे I को वो चिपक गई। सो माई ओरिजिनल वैल्यू ऑफ I इज 12। ओके, सो 12 यहाँ पे आ गया। क्लियर? 12 यहाँ पे आ गया। अभी ये फंक्शन को भी मैंने बहुत सारे रिटर्न टाइप दिया, अनसाइंड, लॉन्ग, इंट, फैक्टोरियल, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, दिस इज द पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन। सिर्फ यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन को मैंने कॉल किया एंड on the point the function is calling, I am looking through this function. So now the value of I is equals to 12. Okay, now inside the function body अभी मैं ये function पूरा run करने वाला हूँ। Okay, so inside the function body, if there is one if condition, if I is less than equal to 1, okay, 12 is less than equal to 1, yes, so return 1। अगर वो 12 लेस देन इक्वल टू 1 है, सो वो रिटर्न 1 करेगा। 12 छोटा है क्या, एक से नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है, ठीक है। सो ये इफ पूरा स्किप होने वाला है। ओके, मतलब ये इफ इतना ब्लॉक पूरा स्किप हो गया। अगर इसकी वैल्यू 1 रहती ना, सो वो डायरेक्टली 1 रिटर्न करता, बिकॉज सुनो यहाँ पे, बिकॉज द फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1 ऑलवेज, ठीक है। दैट्स व्हाई वी राइट द दिस काइंड ऑफ कोड हियर। ओके, देन द नेक्स्ट इज रिटर्न I इंटू फैक्टोरियल I माइनस 1। ओके, अभी क्या है देखो, अभी रिटर्न क्या कर रहा है, ये तो स्किप हो गया। अभी रिटर्न क्या कर रहा है, I इंटू फैक्टोरियल ऑफ I माइनस 1। ओके, मतलब 12 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 12 माइनस 1, मतलब यही चीज हो रही है। टूटे के लगे सी है, हम लोग को 12 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। हाँ, 12 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू 12 माइनस 1, मतलब 11 का फैक्टोरियल, यही चीज हो गई। मतलब 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू दिस। ओके, सो यही चीज यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे देखो 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, बट फंक्शन क्लोज हो रहा है क्या, नहीं, बिकॉज ये जो रिकर्जन है, वो रिकर्जन क्या करेगा, फिर से उसको कॉल करेगा। हाँ, अभी वो टाइम पे 12 इंटू, ओके, सो यहाँ पे रिकर्जन हो रहा है। सो जैसे ही I माइनस 1 होगा, सो 11, okay, so this 11 value is attached to here this function factorial int I। अभी I की वैल्यू हो गई 11। ओके, फिर से वो फंक्शन बॉडी में आएगा, 11 इज लेस देन इक्वल टू 1, फिर से वो परफॉर्म करेगा। मतलब 12 इंटू 11 हो गया। अभी 12 इंटू 11 इंटू 10, हाँ, I माइनस 1 10, उसके बाद 9 8 7 6 5 4 3 2, जैसे ही उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन नहीं है बट इक्वल टू 1 है, ठीक है, सो वो रिटर्न 1 कर देगा। और ये जो पूरा रिजल्ट मैंने कैलकुलेट किया है, हाँ, वो सारा रिजल्ट अभी फैक्टोरियल में स्टोर है, जो की वैल्यू इसमें आ रही है फैक्टोरियल I ऑफ, मतलब फैक्टोरियल I, मतलब इसका ये फंक्शन क्लोज हो गया एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी रिटर्न हियर। अब ये 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 7, ऐसे वो पूरा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। ओके, देन द नेक्स्ट इज फिबोनाची सीरीज। ओके, सो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग what is Fibonacci series. So Fibonacci is all about
सी हियर, स्पेलिंग छोड़ दो अभी, स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो गया. सो फिबोनाची सीरीज इज ऑल अबाउट एंड फिबोनाची सीरीज में और एक बात बताना चाहता हूँ. फिबोनाची सीरीज इज द science, pure science, which we can found in every Vedic terminology. Okay, like means each and every Vedic terminology. Okay, apart from that, the Fibonacci have a very impactful logical impedance, as the Fibonacci series is used in many various aspects. Means बहुत सारे मैथमेटिकल इक्विपमेंट हो या फिर जो रिसर्च हो, उसमें फिबोनाची सीरीज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. सो वो भी ऑलवेज स्टार्ट होगा 0 से, और 0 के बाद 1. ये दोनों पे हम लोग कुछ लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है. बट द लॉजिक बिहाइंड दिस फिबोनाची सीरीज इज एड द करंट नंबर टू द प्रीवियस नंबर. ओके, सो ऑब्वियसली अगर मुझे करंट नंबर और प्रीवियस नंबर दोनों की एडिशन करनी चाहिए, सो ऑब्वियसली मेरे पास दो नंबर चाहिए, ठीक है. सो 0 और 1 के साथ मैं कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज आफ्टर दिस 0 एंड 1 आई कैन परफॉर्म द एडिशन या फिर परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द लॉजिक. सो 0 plus 1, now my third value is 0 plus 1 1. Okay, now current value and previous value, अभी 1 plus 1 2. Okay, 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, 8 plus 5 13, 13 plus 8 21, and so on. Clear? Got the logic? Okay, so now see here, same मैंने किया है. मेन फंक्शन यहाँ पे लिखा, हाँ, inside the main function creating one variable I, and यहाँ पे मैंने मुझे 10 तक चाहिए वो फिबोनाची सीरीज. So that's why I'm writing the for loop, and inside the for loop I'm creating 10 distinct positions from 0 to 10. अभी 0 to 9, ऑब्वियसली 0 to 9, 0 to मतलब शून्यापासून 9 पर्यंत घेतलं तर 10 पोझिशन्स होतात, ठीक आहे. सो आय एम क्रिएटिंग द इनिशियल व्हॅल्यू ॲट 0th पोझिशन अँड राइटिंग द कंडीशन एज I लेस देन 10. सो वो 0 से 9 तक आ गए, एंड आई एम कॉलिंग द फिबोनाची. सेम जैसे कि ऊपर मैंने फैक्टोरियल के किया था, सेम यहाँ पे फिबोनाची के लिए कर रहा हूँ मैं, एंड कॉलिंग द फिबोनाची फंक्शन विच इज प्लेस्ड एट द आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शन बॉडी. फिबोनाची आई है, सो वो इंट आई यहाँ पे वैल्यू आ गई. ओके, इफ आई इज इक्वल टू 0, अभी इनका लॉजिक क्या है, देखो हमारा लॉजिक क्या था, अगर 0 है तो 0 और 1 बाय डिफॉल्ट प्रिंट होने वाला है. सो 0 है सो रिटर्न 0 करेगा, 1 है सो 1 रिटर्न 1 करेगा. गॉट इट? बट इफ द नंबर इज लेस, मतलब अपार्ट फ्रॉम 0 और 1, सो वो क्या करेगा, फिबोनाची i माइनस 1. मतलब क्या i माइनस 1, मतलब मैंने क्या बोला, प्रीवियस और करंट की एडिशन, ठीक है. सो अगर ये है सो i माइनस 1, मतलब ये आ गया. अभी i की वैल्यू यहाँ पे है 2, हाँ, सो 2 माइनस 1 1. यहाँ पे देखो इसके 0 1, हाँ, सो वो 2 मिनट. नाउ सी हियर, दीज आर माई वैल्यूज. ओके, दीज आर माई फिबोनाची वैल्यूज, एंड यहाँ पे जो लिखा है ना, यहाँ पे मैंने वो उसकी पोजीशन लिखी है, आई मतलब एरे वाली पोजीशन लिखी है, इंडेक्स पोजीशन लिखी है, ठीक है. सो जैसे ही मैं i माइनस 1 किया, सो 2 माइनस 1 1, मतलब ये, ओके, मतलब 1 वैल्यू मिल गई मुझे, एंड उसके बाद प्लस फिबोनाची i माइनस 2. सो i माइनस 2 मतलब ये, हाँ, क्योंकि अगर मुझे ये नंबर चाहिए, सो -1 और -2 ये दोनों की एडिशन. क्लियर? ये दोनों की एडिशन, यहाँ पे देखो, -1 फिबोनाची i माइनस 1 i माइनस 2 दोनों की एडिशन, एंड इट विल रिटर्न द रिजल्ट एज 1. ओके, अभी ये फॉर लूप में घूमने वाला है जब तक वो 10 वैल्यूज नहीं. अभी ये लॉजिक सबको पता है कि वो कैसे फिर से वहां पे जाएगा और सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होने वाले, ठीक है. सो वो पहले 0th पोजीशन पे था, तो 0th पोजीशन पे क्या है, 0 है, सो वो 0 आएगा, बाद में 1, बाद में 2 3 4, मतलब ये आई की पोजीशन है. वैसे वैसे वो यहाँ पे देखो ये रिजल्ट जनरेट होने वाला है, 0 1 1 2 3 5 8 21 और 34. मतलब 21 प्लस 13 इतना तो हमने किया था, हम लोग ने इतना किया था. ओके, कुठे गेलं हे बघा, 21 पर्यंत केलं होतं आपण, अँड द लास्ट वैल्यू इज 34. क्लियर? सो आई होप आप लोग को सी फंक्शन समझ में आ गया होगा, एंड अभी सिर्फ लास्ट चैप्टर बाकी है अपना. वी आर वेरी ग्रेटफुल, we completed our first 5 chapters and now there is only 1 chapter left. So next week में हम लोग वो 2-3 लेक्चर में, बहुत ही छोटा टॉपिक है पॉइंटर का, सो वो 2-3 लेक्चर में हम लोग चैप्टर को खत्म हो जाएगा, ठीक है. प्रैक्टिस करो, यू विल गेट द कॉन्सेप्ट.